Okay. So we'll start with this chapter, acid, bases, and salts today. And in your junior classes also, you have done this thing, that what are acids, bases, and salts. Can anyone tell what you know about acid, base, or salt? Someone who can tell about acid. In general term, आपके kitchen में you have variety of articles that we are using in daily life. So how you can find them, whether they are acid, base, or salt? Ma'am, acids taste sour. Yeah, acid taste sour. Bases. Acids change red litmus paper to blue. Yes, what you said, Mehak? Can anyone correct what Mehak said? Ma'am, Acids. Yes, the Mehak. color of blue litmus paper to red. Oh. That is okay. Litmus. If you don't have litmus at your home, how will you come to know whether a substance is acidic or basic? Ma'am, they are Ma'am, sour acid. in taste. Yeah, but sometimes it is not convenient because uh, the articles which we are using at in our kitchen na, so they are quite safer. We can taste them. But if you are standing in a chemistry lab and someone is asking you to find whether a substance is acidic or basic, so in that case, it is not, you can say, suggested that you need to taste them, because sometimes that thing may be toxic to your to your body. Sometimes acids may be quite like strong, so they can even cause harm to your tongue or as well as your skin. ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा सा एक जनरल एस्पेक्ट है कि एक जनरल एसिड्स आर सॉल्ट टू टेस्ट, बेसेस आर बिटर टू टेस्ट, एंड सॉल्ट्स जनरली सॉल्टी टेस्ट के बेस पे नेम है, बट इट इज नॉट suggested that you should taste, because tasting a chemical can cause harm, because all the chemicals are not edible. Yeah, we can say that in kitchen we can sometimes taste them, but still vinegar like things, if you taste, so vinegar is quite sharp, like बहुत ज्यादा सॉर होता है टेस्ट में, तो इतना ही शार्प चीजें भी आप हर टाइम टेस्ट नहीं कर सकते हो. तो what you need to do, actually there are certain things which change their color in acid or basic solution. Okay. And these substances are called indicators. So these indicators are to be used when it is asked to identify whether a substance is acidic or basic in nature. Okay. So indicators हमारे पास basically जो normal acid base indicators भी हम उनको कहते हैं, those substances which change their color, right? Meg told that litmus changes in its color in acid or base. ठीक है, तो ऐसी जो भी चीजें हमारे पास हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपके किचन में मैंने आपको बोला कि आपके पास लिटमस तो नहीं होगा, बट इन योर किचन देयर इज अ substance which you can use to test whether a substance is acidic or base, that is turmeric powder. Turmeric powder is available in each and every kitchen na, because it is the basic ingredient that we are using at home. तो हल्दी पाउडर जिसको हम कहते हैं, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर. लिटमस ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ नेचुरल इंडिकेटर. तो ये जो चीजें कलर चेंज करती हैं एसिड और बेस सॉल्यूशन में, दे आर कॉल्ड acid base indicators, and these acid base indicators are of two types, natural और synthetic. डिफरेंस नेचुरल क्या है? नेचुरल वो है जो अपने आप नेचर में हमने किसी प्लांट या किसी एनिमल प्रोडक्ट से ऑब्टेन की हुई चीज है, मतलब नेचर में अपने आप बनी हुई है, हमने नहीं बनाया. तो दोज नेचुरल इंडिकेटर्स आर लिटमस, जो आपको सिलेबस में है, लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. ठीक है, इसके अलावा भी लाइक बीट रूट एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज यू कैन से नेचुरल इंडिकेटर. बट आपकी बुक में है लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज. रेड कैबेज को बॉयल करके और उसको लाइक उसके एक्सट्रैक्ट को हम यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर. टर्मरिक
पाउडर को थोड़ा सा वाटर में डिसॉल्व कर लो तो एक येलो सोल्यूशन बन जाएगा, दैट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर. लिटमस इज एक्चुअली an indicator which is obtained from lichens. Lichens आपने पढ़े हैं lower classes में बेटा. Lichens are actually a symbiotic relationship of algae and fungi. Algae and fungi का एक symbiosis होता है, उसमें मतलब algae जो है वो food prepare करता है because it has chlorophyll, and fungi provides essential minerals and support जो है थोड़ा उसको like प्रोवाइड कर रहा है एल्गे को. तो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं. तो दिस म्यूचुअल बेनिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन इज known as symbiotic association or symbiotic relationship. So lichens are naturally occurring you can say organisms which is symbiotic relationship of algae and fungi. And lichens के extract को मतलब lichens को boil करके उनका extract separate करते हैं, and that extract is purple in color and it is used as a natural indicator. और उसमें फिर थोड़ा सा एसिड और बेस डाल के उसको 2 कलर में कन्वर्ट कर लिया जाता है. लिटमस चेंजेस इट्स कलर टू रेड इन एसिडिक मीडियम एंड लिटमस चेंजेस इट्स कलर इनटू ब्लू इन बेसिक मीडियम. तो पर्पल जो लिटमस होता है बेटा उसको 2 डिफरेंट इंडिकेटर्स उससे बना लेते हैं, उसमें एसिड डाल के वो रेड हो जाता है और बेस डाल के ब्लू. तो आपके पास 2 लैब में हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस. पेपर भी 2 ही कलर के आते हैं एंड लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस. एंड दीज आर फर्दर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. ठीक है, विल डिस्कस द कलर चेंजेस लेटर. पहले अभी मैं आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बता रही हूँ. इंडिकेटर्स 2 टाइप के हैं बेसिकली, एक वो जो अपना कलर चेंज करते हैं और दूसरे जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं. तो दोज सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर स्मेल और ओडर in acidic or basic medium, they are called olfactory indicators. Olfactory का मतलब होता है, olfactory term scientific मतलब biological term है which means something related to smell. जो olfactory nerves जो आपकी nose से brain में जा रही हैं, मतलब nose के related चीजों को smell जो हमारा sense है उससे related term है ये olfactory. तो olfactory indicators are those indicators that change their smell or odor in acidic or basic medium. And normal indicators or acid base indicators are those substances that change their color. ठीक है, तो color और smell दोनों change कर सकते हैं substances acidic or basic medium में. That is why these things are used to identify whether a given substance is acid or a base. तो acid base indicators 2 types के हैं, natural and synthetic. Natural में litmus, turmeric and red cabbage extract. Synthetic indicators are otherwise so many there which have been prepared in laboratories or synthesized in laboratories to check whether a substance is acidic or base. But in your syllabus you have 2 of them. First one is phenolphthalein and spelling इसमें बहुत mistake करते हैं बच्चे, तो that is important. And secondly methyl orange. So these 2 synthetic indicators are there in your syllabus. And olfactory indicators में आपको है vanilla essence. Vanilla essence generally हम किचन में यूज करते हैं टू बेक केक्स वगैरह में यूज होता है. एंड अनियन एक्सट्रैक्ट होता है, अनियन का जो जूस है. ठीक है, तो ये चीजें अपनी स्मेल, ये दोनों ही वनीला एसेंस एंड अनियन एक्सट्रैक्ट, दे lose their smell in basic medium but they retain their smell in acidic medium. तो ये इस तरह के जो चेंजेस हैं यहाँ एक टेबल में आपको मिलेंगे. तो फर्स्टली red litmus, just wait. I told you that natural litmus is in purple. If you have your notebook, you can note down. And one important thing, आपको ये table इसी format में you can take screenshot. Otherwise, you need to prepare this table in your notebook as well, because for 1 mark question changes can be asked for any indicator. So first यहाँ से रेड लिटमस से लेके रेड कैबेज जूस तक आपके इंडिकेटर जो है नेचुरल में आ जाते हैं.
phenolphthalein and methyl orage are synthetic indicators. Onion extract and vanilla essence, that is olfactory indicators. ठीक है, तो रेड लिटमस, अदरवाइज अगर आपको सिर्फ लिटमस पूछा गया है तो आप उसका ओरिजिनल जो कलर है दैट इज पर्पल कलर. ठीक है, तो आप एक कॉलम में नॉर्मल लिटमस भी लिख लो सो दैट यू विल कम टू नो. नॉर्मल जो लिटमस है, ओनली लिटमस यू नीड टू राइट हियर, या लिटमस सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, या लिटमस पेपर भी लिख सकते हो. ओरिजिनल कलर इज पर्पल, एसिड में होता है रेड, बेस में होता है ब्लू. ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि वी आर यूजिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशंस और लिटमस पेपर इन लेबोरेटरीज. दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस पर्पल लिटमस. पर्पल लिटमस में थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं तो वो रेड बन जाता है, एंड दैट रेड लिटमस इज used to detect whether a substance is acidic or basic. And blue litmus बनाने के लिए हम उस purple litmus solution में थोड़ा सा बेस ऐड कर देते हैं तो इट टर्न्स टू ब्लू. ठीक है, अब ये दोनों फर्दर सॉल्यूशन हमने यूज करने. रेड लिटमस, ओरिजिनल कलर रेड, एंड व्हेन इट इज एडेड टू एसिड देयर इज नो चेंज, एंड व्हेन इट इज एडेड टू अ बेस इट टर्न्स ब्लू. And blue litmus, original color is blue. When it is added to acids it turns to red, and when it is added to a base there is no change. Clear? So blue litmus is used to detect acidic substances, red litmus is used to detect basic substances. Otherwise normal litmus can also be used, no problem with that. और आपको ये चीज याद रखनी है, एक छोटा सा ना हिंट रख लो माइंड में. ABR, BRB. ABR means acid, blue to red. BRB base, red to blue. ये सिंबॉलिक थोड़ा सा माइंड में रखोगे ना, बहुत कंफ्यूजिंग है अदरवाइज ये कलर्स, बिकॉज इंस्टेंटली आप एक बार से नहीं बता पाते हो. तो इट्स बेटर इफ यू मेमोराइज देम. ABR, BRB. ABR acid, blue to red. BRB base, red to blue. Clear? So in this symbolic format you can always learn them. Next is turmeric. टर्मरिक का बेटा एक छोटी सी एक्टिविटी आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हुई है कि व्हेन सम वेजिटेबल करी, कोई भी ग्रेवी वाली वेजिटेबल है, इवन ड्राई वेजिटेबल्स आल्सो जिसमें टर्मरिक यूज हुई है, अगर वो वेजिटेबल आपकी व्हाइट शर्ट पे या किसी भी कप, मतलब जो आपने क्लोथ्स पहने हैं उन पे गिर जाती है लाइट कलर पे, डार्क पे इतना विजिबल नहीं होता, तो व्हाइट या कोई भी लाइट कलर के क्लोथ्स अगर आपने पहने हैं एंड इफ सम वेजिटेबल करी स्पिल्ट ओवर देयर, तो आपने चेंज ऑब्जर्व किया होगा कि आपका वो जो व्हाइट क्लोथ है वो येलो हो जाता है. ठीक है, बिकॉज टर्मरिक हैज नेचुरल येलो कलर. Now what happens when you wash that cloth with soap? Soaps are basic in nature. Okay, तो आप जब उनको वॉश कर रहे हो सोप से उस क्लोथ को, तो आपने अगर ऑब्जर्व किया, और यू कैन आस्क योर मदर एज वेल, अगर उन्होंने जब भी हम लोग वॉश करते हैं तो इंस्टेंटली वहां जहाँ पे सब्जी गिरी है दैट स्पॉट टर्न्स टू रेड. वो एकदम से जाता नहीं है सोप रब करने पे, it turns to reddish brown because soaps are basic in nature and turmeric changes its color into reddish brown. और उसके बाद जब आप उसको अच्छे से वॉश करके सनलाइट में अगर उसको ड्राई अप करते हो देन इट गेट्स डिसअपियर. मतलब वो टर्मरिक का जो दाग जो पड़ता है कपड़े पे दैट changes into yellow to reddish brown first on applying soap or detergent, because soaps and detergents are basic in nature. And then when we wash this with water and then we let it dry in sun, then it become, मतलब disappear वो तब होगा. ठीक है, तो पहले आपको वो disappear का वाला काम नहीं करना, आपको सिर्फ इतना देखना है कि basic solution में turmeric changes into reddish brown and no change is observed when we add turmeric in acidic medium. आप अपने घर में, आपके विनेगर भी होगा, आपके घर में सोप सोल्यूशन तो सबके घर में है ही है. आपने क्या करना है, आज टर्मरिक का थोड़ा सा सोल्यूशन बनाना है. मतलब हाफ स्पून ले लो टर्मरिक पाउडर और उसको एक स्मॉल लाइक हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स कर लो, हाफ कप से भी कम ले सकते हो. तो एक आपके पास ये टर्मरिक इंडिकेटर सोल्यूशन बन गया. नाउ you need to take some amount of vinegar in 1 glass and some amount of soap solution. सोप सोल्यूशन बनाने के लिए सोप को वाटर में डिसॉल्व कर लो. इफ यू हैव बेकिंग सोडा एट होम यू कैन यूज दैट ऑल्सो. ठीक है, तो टूथपेस्ट लेके भी आप टेस्ट कर सकते हो. तो ये सारी बेसिक चीजें हैं दैट यू कैन यूज.
अब इन दोनों सॉल्यूशंस में आपको थोड़ा सा टर्मरिक सॉल्यूशन ऐड करना है. देयर विल बी नो चेंज इन टर्मरिक सॉल्यूशन. मींस टर्मरिक सॉल्यूशन येलो कलर का ही रहेगा अगर आप उसमें विनेगर डालते हो, या विनेगर में आपने थोड़ा सा टर्मरिक सॉल्यूशन डाला, वो येलो का येलो ही रहेगा. देयर विल बी नो चेंज ऑब्जर्व्ड इन एसिडिक मीडियम. तो एसिडिक मीडियम में टर्मरिक का कलर येलो ही रहता है. या नो चेंज की जगह येलो लिखना आप नोटबुक में जब लिखोगे. ठीक है, इट रिमेन्स येलो. And in basic solutions it changes into reddish brown. So turmeric is can be used to detect whether a substance is acidic or base. Next is red cabbage extract. Red cabbage extract is reddish purple color का होता है, dark violet सा होता है when it is prepared. ठीक है, and when it is added to an acid, ये proper एक जो अच्छा सा रेड कलर जैसे रूह अफ़ज़ा वाला कलर होता है उस तरह का कन्वर्ट हो जाता है. आई हैव दिस indicator prepared by a student last year in school, but otherwise if red cabbage is available in your area you can prepare that. But it's not that कि आपने मार्केट जाके इसको ढूंढ के स्पेशली कहीं से भी परचेज करके लाना है. No need to go anywhere. If you find it at nearby, then you can do. Otherwise no need. Turmeric is available at your home, you can do taste with that also. Red cabbage extract is पर्पल और डार्क वॉयलेट इन कलर. जो इसका नेचुरल कलर है, इट चेंजेस इनटू रेडिश डार्क रेड कलर इनटू एसिड एंड ग्रीनिश येलो कलर इन बेस. क्लियर? एंड फिनोल्फ्थालीन खुद अपने आप में कलरलेस सब्सटेंस है. कलरलेस ही रहता है when it is added to acid. Means there is no change in color of phenolphthalein. Phenolphthalein itself is colorless, remain colorless in acidic medium, but it changes into dark pink color. बहुत dark pink color होता है इसका basic medium में. And methyl orange, it is orange colored solution. Its natural color is orange. Turns to red in acidic medium and it turns to yellow in basic medium. ओके तो ये देखो एक आपको रेड कलर आपको ना एसिड्स में काफी जगह पे मिल रहा है. तो ये थोड़ा सा एक माइंड में रखो कि जहां पर भी आप रेड देख रहे हो, लिटमस में, रेड कैबेज में, मिथाइल ऑरेंज में, तो एसिड्स के लिए जनरली रेड कलर बहुत आता है. एक ये रेडिश ब्राउन टर्मरिक के लिए जो है वो बेसिस में है, बट ये प्रॉपर रेड नहीं होता. इट इज ब्राउनिश रेड, ब्राउन टोन ज्यादा मिलती है आपको इसमें. ये जो होते हैं प्रॉपर पिंकिश रेड से कलर होते हैं, मतलब जो बहुत अच्छा सा ब्राइट रेड कलर आपको मिलता है. नेक्स्ट ये दोनों है बेटा आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. तो अनियन एक्सट्रैक्ट इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक अनियन की स्मेल होती है, बहुत शार्प स्मेल होती है. यू नो दैट it remains as such in acidic medium. Means there is no change in smell of onion extract in acids, but it vanishes in case of base. Vanishes मतलब आपको स्मेल नहीं आएगी अनियन की अगर आपने किसी बेस में उसको ऐड किया है. सोप सॉल्यूशन में अगर आप अनियन एक्सट्रैक्ट डाल के स्मेल करते हो, you will not be able to identify smell of onion, but onion smell retains in acidic medium. विनेगर में आप, विनेगर की एक्चुअली अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बहुत होती है, तो आप थोड़ा सा कोई और एसिड लेके ट्राई कर सकते हो. कर्ड ले सकते हो जिसमें अपनी स्मेल कम हो, क्योंकि विनेगर हैज वेरी शार्प स्मेल. तो उसमें मे बी आपको अनियन की स्मेल ना डिटेक्ट हो, बट अदरवाइज जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं उसमें आप अनियन स्मेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो. मींस smell of onion extract retains in acidic medium, but it vanishes in basic medium. Same in case of vanilla essence. Vanilla essence की तो बहुत अच्छी सी fragrance होती है, sweet smell, that is retained. Means कोई change नहीं आएगा, वो as such रहेगी. आप अगर उसमें कोई acid भी डाल देते हो तो जैसे केक वगैरह बनाते हैं हम, कई बार उसमें केक में कर्ड भी ऐड करते हैं, बट स्टिल द स्मेल रिटेन, वनीला का जो फ्लेवर है वो रहता है स्मेल. एंड बेसिक मीडियम में ये स्मेल वैनिश हो जाती है. तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू लर्न ऑल दीज कलर चेंजेस एंड स्मेल चेंजेस. स्मेल के लिए एक ही चीज याद रखनी है, एसिड में स्मेल में कोई चेंज नहीं आता. स्मेल रिमेन्स एज सच in acidic medium, but the smell of olfactory indicators vanish out when we add them to some basic substances. दो ही olfactory indicator आपको सिलेबस में है, अनियन
एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एसेंस, और दोनों के केस में ही एसिड्स में ये स्मेल रिटेन रखेंगे, बेसिस में वैनिश हो जाएगी स्मेल. बाकी कलर चेंजेस, लिटमस, टर्मरिक, red cabbage, phenolphthalein and methyl orange. 5 substances are there for that you need to memorize the color changes. Okay.